नमस्कार। हेल्थनामा में हम आज बात करेंगे महिलाओं से जुड़ी समस्याओं पर, खासकर सेक्सुअल हेल्थ पर। इस बारे में बहुत कम चर्चा होती है। गांव हो या शहर, हर जगह सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मामले में महिलाओं के अधिकार काफ़ी सीमित हैं। एक तो जागरूकता की कमी, ऊपर से अधिकारों का ना होना कई तरह की मानसिक और शारीरिक समस्याओं का कारण बनता है। हमने विमेन हेल्थ और राइट्स से जुड़े कई एक्सपर्ट से इस बारे में खुलकर बात की। आइए सुनते हैं उनके विचार। हमारे देश में आईवीएफ और सरोगेसी पॉपुलर क्यों नहीं होता है दूसरे देशों की तरह? महंगा है इसीलिए, या लोग जागरूक जो जानते नहीं है, या लोगों को भरोसा नहीं है इस पर? You would be surprised to know that the cost of IVF and surrogacy in our country is 1/10 the cost of IVF surrogacy in any other country and 1/40th the cost of surrogacy in USA. So महंगा नहीं है, जो सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं. It is easily available. The problem is awareness. The problem is taboo. As I already heard in the previous panel, a baby is considered a gift of God. So there is a mindset that इन्होंने कुछ गलत किया होगा इसलिए इनके बच्चा नहीं होना है. And people want to avoid that mindset. People are still afraid of, we have so much of success stories. Like for example, आपने किसी भी फील्ड में कुछ भी अच्छा अचीव किया तो पेशेंट्स आपका साथ देते हैं, वो आपको बताते हैं कि हाँ ठीक है, they are not afraid of posting on social media. But IVF में और specifically surrogacy में अगर आप कोई पेशेंट को कहते हैं कि आप would you like to give a comment on how you, they want to keep it hiding. They don't want to disclose that they went through the IVF process. They don't want to disclose at any cost that they went through the surrogacy process because there is a still taboo attached to it. People want to think that okay fine, मेरे साथ कुछ गलत नहीं है, मेरा ठीक है सब कुछ and मुझे कोई problem नहीं हुई. Because the other people, society majorly thinks that if they need IVF, then there is something wrong with them. We don't understand that this is a disease. We understand that this is some sort of, blessings are not there or something like that. That is the problem. It is still a taboo. हमारे देश में एक और देखा गया है कि हाँ, यंग विमेन, कम उम्र की लड़कियों में पीसीओएस और पीसीओडी की शिकायत बहुत ज्यादा रहती है. इसका प्रिवेंशन क्या है और क्या ये उम्र के साथ अपने आप खत्म हो जाता है, क्योर हो जाता है? So PCOS and PCOD बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हार्मोनल डिसफंक्शन है एंड अभी ये बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट हो गया है. क्योंकि हम लोगों की न्यूट्रिशन की समझ एब्सोल्युटली जीरो हो गई है. मोस्ट ऑफ द हाउसेज, मोस्ट ऑफ द कपल्स, दे आर इंडिविजुअली लिविंग, like children are eating out 5 times in a week. All kind of junk is easily available at the tip of your finger. It takes only 10 minutes to deliver a ready-made hot pizza to you. And it doesn't charge even that much, It is an effort to make nutritious food. आपको sprouts को भिगोना पड़ेगा, उसको grow करना पड़ेगा, उसके बाद आप खाएंगे. So, and that is not very tasty also. So, nutrition and lifestyle. One thing is nutrition. Because of the lack of nutritional information, everybody is eating a lot of junk, which is easily available. Second part is lifestyle. आजकल ज्यादातर बच्चे, पहले हम लोग छोटे थे तो हम बहुत खेलते थे. There was 1.5-2 hours in the evening when we used to play like anything. हमको मम्मियाँ पकड़ के खींच के लेके आती थी. But now the things have changed. Now mothers are forcing children to go out at least for 5 minutes. They are sitting with their laptops, they are sitting with their phones. They are not ready to move out of the bed. And this COVID 2.5 year has worsened the situation like anything. Most of the children are hooked to the computers. So lack of exercise and lack of nutritious food and easy availability of junk food. That is the reason why PCOS and PCOD is increasing at an alarming rate. क्या वर्किंग वुमेन की स्थिति शहरों की ग्रामीण महिलाओं से बेहतर है फिजिकली और मेंटल हेल्थ के लिए? मैं ये जनरलाइज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इस तरह का कोई डेटा हमारे पास में पुख्ता रूप से नहीं है. पर challenges of women in general in India mostly similar ही रहते हैं. बस अर्बन एरियाज में आप ये कह सकते हैं कि औरतें थोड़ा बाहर निकल आई हैं तो एक को देख करके दूसरी के पास में थोड़ा ये हक हो जाता है कि मैं भी बाहर जाके काम कर लूं. लेकिन उनके अपने स्ट्रगल्स अभी भी हैं फैमिली से, क्योंकि मोस्टली अर्बन एरियाज में भी लोग आए तो रूरल एरियाज से ही हुए हैं.
तो माहौल तो थोड़ा खुला है, लेकिन डिप्रेशन वहाँ पर फिर और तरह का हो जाता है, क्योंकि women also go through the burden of making their careers functional, और वहाँ पे उनके ऊपर एक डबल बर्डन आ गया है कि हमें हाउस होल्ड भी संभालना है और हमें अपना करियर भी संभालना है। तो ऐसे में एक आइडेंटिटी क्राइसिस को लेकर के डिप्रेशन बहुत है। फिर आज रूरल एरियाज में आप देखें तो आज भी उनके ऊपर जिस तरह का प्रेशर जो पहले हुआ करता था वही है कि छोटी उम्र में शादी हो रही है, और वो शादी के बाद में कुछ फैमिली उनको पढ़ने भी दे रही हैं, लेकिन काम तो घर का करना पड़ेगा, बच्चे तो संभालने पड़ेंगे, पर उन्हें भी अपना एक वजूद बनाना है, तो उसमें भी उनका स्ट्रगल चलता रहता है। तो ऐसे इन जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि रूरल इंडिया में महिलाओं के लिए सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मामले में सबसे बड़ी समस्या क्या है और इसके समाधान क्या होने चाहिए, आपके हिसाब से क्या लगता है? रूरल इंडिया में सबसे बड़ी समस्याएं औरतों के लिए, जैसे कि हमने बात की कि उनके पास में अपनी एजेंसी नहीं है, एजेंसी ऑफ वुमेन। मैं अगर स्ट्रक्चरल फॉर्म में बात करूँ तो एक टर्म हम यूज करते हैं स्ट्रक्चरल वायलेंस। हम बहुत सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की ऑफ एन इंडिविजुअल, लेकिन हम लोग अपने सोसाइटल नॉर्म्स को अगर कंसिडर नहीं करते हैं तो वो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब धरे के धरे रह जाते हैं। तो स्ट्रक्चरल वायलेंस के होते हुए औरतों के पास अपनी किसी तरह की एजेंसी नहीं होती है, न शादी करने के लिए हाँ कर पाना या ना कर पाना, और साथ ही में शादी होने के बाद में अपनी सेक्सुअल लाइफ किस तरह से शुरू करनी है उसकी कोई एजेंसी नहीं है। तो बच्चे करना, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज कर पाना, और हमें किस तरह से हेल्थ केयर अवेल करना है नहीं करना है, किसी भी फॉर्म में उनके पास में कोई एजेंसी होती ही नहीं है। और ये चीज़ बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी हो जाती है, जिससे कि हमारा जो डिजीज बर्डन इन विमेन कहा जाता है वो बहुत बढ़ जाता है। और आजकल अगर मैं बात करूँ तो हम लोग बात करने लगे हैं मेंटल हेल्थ की भी, तो मैटरनल हेल्थ में हम लोग बहुत ज़्यादा पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी देखते हैं। देयर इज दिस थिंग विच पीपल हैव नाउ ऑल्सो स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि शादी के बाद में भी जो औरतों को एडजस्टमेंट करने में टाइम लगता है, वो पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट इज बीइंग एनकाउंटर्ड। ये बहुत ही प्रिविलेज्ड सोसाइटीज में ही बात होती है, बट इन माई एक्सपीरियंस, इन माई रिसर्च वर्क, इन माई work with women in rural and tribal areas, मैं I can fairly say कि वो जो भी चीज़ें डील कर रही होती हैं, जैसे एडजस्टमेंट इश्यूज कह के टाल दिया जाता है, ये नए घर में एडजस्ट नहीं होना चाह रही है, तो ये सब चीज़ें मेंटल हेल्थ, उनके मैटरनल हेल्थ, इन सब को इम्पैक्ट करता है। SRHR की जब बात होती है तो हम लोग जो कोट करते हैं या जो हम आंकड़े बताते हैं उनमें ज़्यादातर अर्बन होता है। रूरल इंडिया की स्थिति बहुत ही खराब है, और महिलाएं इस राइट को कैसे हैंडल करें, क्योंकि जो हमारा समाज है एक तरह से उनका एंटी वुमेन एटीट्यूड है, महिलाओं पे हावी होने, महिलाओं को डिक्टेट करने का एक जो हमारे यहाँ फैशन है, खास करके रूरल इंडिया में। ऐसे माहौल में महिलाएं क्या करें, कैसे इस राइट्स का उपयोग करें? आई थिंक ये सिर्फ रूरल की प्रॉब्लम नहीं है, ये अर्बन की भी प्रॉब्लम है। और जब हम SRHR स्पेशली बिहेवियरल पर्सपेक्टिव से जब हम बात करते हैं, बहुत जरूरी है समझना कि आप SRHR को बिहेवियरल लेंस से किस तरीके से देख सकते हैं। और मैं एक फ्रेमवर्क का जिक्र करना चाहूंगी जिसको हम कैपेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी एंड मोटिवेशन बोलते हैं। किसी भी प्रकार में अगर आपको एक्चुअली में चेंज बिहेवियर, बिकॉज सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ लॉट टू डू विद बिहेवियर चेंज पर से, एंड इफ यू रियली हैव टू ब्रिंग दैट चेंज, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ वेरी होलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ from the lens of capability, which means psychological capability. अक्सर हम सिर्फ नॉलेज पे रुक जाते हैं और हम बात करते हैं कि इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, बट जानकारी इज जस्ट एक पड़ाव उस पूरे स्पेक्ट्रम का या उस पूरे जर्नी का, जहाँ पे एक्चुअली में जानकारी से लेके वो एक्शन तक एक इंसान मूव करता है या एक कम्युनिटी मूव करती है। We talk about psychological capability, physical capability, we talk about opportunity. Opportunity मतलब दो लेंस से देखा जा सकता है इसको। एक सोशल अपॉर्चुनिटी की, क्या हमारे पास सोशली वो सेफ स्पेसेस हैं जहाँ पे आप खुलकर
सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात कर सकते हैं, क्या हमारे पास वो सेफ इंटरैक्टिव स्पेसेस हैं, हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स, आर दे प्रोवाइडिंग दैट सेफ स्पेस, इज दैट सेफ स्पेस अवेलेबल एट द कम्युनिटी लेवल, also physical opportunities in terms of environmental context, in terms of resources being available, in terms of having access to services. Then we can look at the motivational factors, which is, you know, the belief system and the value system. And a lot of जो आप बोल रहे हैं कि औरतों को नीचे तबके में रखा जाता है, ये social norms का बहुत major role यहाँ पे social norms play करता है, and it's a very very complicated and complex piece to unpack as well. दो तरीके के नॉर्म्स हैं, एक जो सोसाइटी आपके ऊपर थोप रही है और दूसरी जो आपने इंटरनलाइज भी कर लिया है अपने आप को मानने के लिए, क्योंकि यू नो दिस इज हु आई एम, आपका एफिकेसी, आपका खुद का एजेंसी आप एग्जर्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ डिफरेंट कंस्ट्रक्ट. सो जब आप बिहेवियर को इन 3 लेंसेज से देखें, कैपेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी एंड मोटिवेशन, और इसमें आप ये जोड़ें कि भाई ये कैपेबिलिटी, मोटिवेशन एंड अपॉर्चुनिटी 3 लेवल्स पे काम कर रही है, एक इंडिविजुअल के लेवल पे, एक सोसाइटी के लेवल पे और एक सिस्टम के लेवल पे, तब जाके आप एक्चुअली चेंज को अनपैक कर पाएंगे और चेंज को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे. सेक्स और एबॉर्शन हमारे यहाँ बहुत सेंसिटिव माना जाता है, सेंसिटिव सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन महिलाओं के अधिकार इसमें सीमित हैं, क्योंकि जो हस्बैंड हैं और या जो पार्टनर हैं, डिसाइसिव फैक्टर वही है. इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? क्या खाली जागरूकता से किया जा सकता है, या हम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का पाठ उनको पढ़ाते रहे, एकला चलो रे, क्या इसका राइट? आई थिंक जैसे मैंने कहा, जागरूकता सिर्फ एक स्टेप है पूरे स्पेक्ट्रम में. आप अगर बिहेवियर चेंज, मतलब एक्चुअली में अगर हमें करना है, तो आपको पहले तो वो इंटेंट डेवलप करना पड़ेगा कि हाँ मैं वो चेंज चाहता हूँ या चाहती हूँ, एंड देन फ्रॉम देयर यू हैव टू मूव टू द फैक्ट कि भाई ये चेंज आए कैसे. और सिर्फ ये जिम्मेदारी एक औरत की, एक एडोलेसेंट गर्ल की, एक यंग वुमेन की नहीं है. दिस इज अ थिंग जो पूरे सिस्टम के साथ, पूरे इकोसिस्टम के साथ चेंज करना होगा. बट हैविंग सेड दैट, देयर आर डेफिनेटली सम थिंग्स जो एक इंडिविजुअल अपने एट एन इंडिविजुअल लेवल, सर्टेन थिंग्स दैट कैन हेल्प इज फर्स्ट, अगर आप इंडिविजुअल एजेंसी को कैसे बिल्ड कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस करें, which again starts with the fact that you provide that comprehensive knowledge to help visualize health risk and long term impact of choices. Because a lot of times हमने जो देखा है वो ये है कि जब आप स्पेशली पब्लिक हेल्थ में जब आप रिस्क को परसीव कर रहे हैं, रिस्क को फ्रेम कर रहे हैं, वो आप बहुत अपने एज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट या डॉक्टर के लेंस से कर रहे हैं, you're not framing it from the lens of the end user or the receiver. और वो क्या कर रहे हैं उस टाइम पे, जब आप चॉइसेस में आप चूज कर रहे हैं कि अच्छा इसका क्या असर होगा, आप बहुत हमारा दिमाग बहुत शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को समझ बाइफरकेट नहीं कर पाता है, बिकॉज ऑफ विच इमीडिएट रिएक्शन, इमीडिएट लॉस क्या हो रहा है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं. एंड ऑफन टाइम्स हेल्थ चॉइसेस जो हम बोलते हैं ना, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म में जाता है, उसका इमीडिएट मैनिफेस्टेशन, इमीडिएट इम्पैक्ट हो सकता है कि हमारा रिलेशनशिप टूट रहा है. लाइक अ लॉट ऑफ वुमेन हैव एक्चुअली स्पोकन अबाउट, भाई मैं आप कॉन्डम यूज करने को बोल रहे हैं, माई पार्टनर डजंट वांट टू यूज कॉन्डम, वो प्लेजर नहीं मिलता है उसको फॉर एग्जांपल, या मेरे को अपने पार्टनर के ऊपर पूरा ट्रस्ट है एंड अगर मैं कॉन्डम यूज करने को बोलूंगी अपने पार्टनर को, तो मेरे ऊपर क्वेश्चन उठेगा कि भाई मैं am I being not loyal in this relationship? So and the relationship might break, and that's a very immediate impact that they can see. That knowledge building is very very important कि वो visualize कर सके कि भाई long term में और short term में जो आप choices make कर रहे हैं उनका health के ऊपर क्या impact हो सकता है. Secondly, at an individual level, it's very very important for us to build that self-efficacy and use positive personal norms. Basically, we need to help women understand how self-care is crucial to live fulfilling lives with reduced dependency on others, that increased autonomy. आप बताइए, घर में आज भी most of the घरों में ये होता है माँ लास्ट में खाना खाती है. That self-care का concept for women does not exist. सबने खाना खा लिया, रोटी गरम माँ सर्व करेगी, या it's usually the female in the house who will serve, and that thing needs to change. That fact that आप self care is not selfish, आप अगर अपने बारे में सोच रहे हैं ये गलत नहीं है, that has to be instilled and that has to start right at the time of परवरिश,
जब हो रही है उसी टाइम से टू अ लेटर स्टेज, जब आप इन जनरल सेल्फ एफिकेसी, मैं काबिल हूँ इसके और मैं अगर अपने बारे में सोच रही हूँ तो वो गलत नहीं है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प विमेन अंडरस्टैंड। वर्किंग वुमेन के बारे में हमें बताइए, जिनको कि घर और दफ्तर के बीच बैलेंस करना पड़ता है, बच्चों का, परिवार का, सबका ध्यान रखना पड़ता है। उनको क्या नींद की समस्याएं होती है, और अगर होती है तो प्रिवेंशन या उपचार, या आप उनको किस तरह से बताती हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, वर्किंग विमेन हमारा सोसाइटी है। हर इंडिविजुअल, पुराने समय की बात करें अगर एंशिएंट टाइम में, तो लेडीज को बहुत रोक करके रखा जाता था। और हमारा सोसाइटी नॉट ओनली इन इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये लेडीज का मेन रोल है नर्चरिंग द फैमिली। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। जैसे जैसे समय बदलता गया, लोग आगे बढ़ना शुरू किया, एंड लेडीज, उनके अंदर कैपेबिलिटीज भी है, उनके ड्रीम्स भी है, एस्पिरेशंस भी है, वो काम करते हैं और ये बहुत ही सराहनीय कदम है। पर एट द सेम टाइम जो सोसाइटल नॉर्म है उनका, जो कि एक प्री डिफाइंड रोल जो विमेन का है कि उनको अपने परिवार का ख्याल रखना है, समवेयर उनके माइंड में ये हमेशा रहता है कि दे आर नॉट एबल टू डू प्रॉपर जस्टिस टू देयर फैमिली। और ये कहीं ना कहीं ये जो रिफ्ट होता है उनके माइंड में एक गिल्ट पैदा करता है कि आई एम नॉट एबल टू डू प्रॉपर जस्टिस। एट द सेम टाइम दे आर नॉट एबल, मेनी टाइम्स इट हैपेंस, ऐसा नहीं है कि मैं सारी वर्किंग विमेन को बोलूंगी, फिर भी मेजॉरिटी 80% वर्किंग विमेन आर नॉट एबल टू मेक द प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस। वो इस एक बोलते हैं ना, दो पहिए में घूमते रहते हैं, दो नाव पे सवारी कर रहे हैं। ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर उनके सुपीरियर्स उनको नहीं समझते हैं कि व्हाट प्रॉब्लम दे आर फेसिंग एट देयर होम, और घर वाले नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं कि ऑफिस गए और ये घर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और इस पूरे बार्गेन में लेडी का मेंटल स्ट्रेस काफी बढ़ जाता है कि वो क्या जस्टिस करे, उनके अपने सपनों को देखे या अपने फैमिली को देखे, अपने बच्चों को देखे, तो यहाँ पर उनके अंदर स्ट्रेस होता है। आप रूरल इंडिया में काम करती हैं और आपने जैसा कि बताया कि महिलाओं के अधिकार को और उनकी जागरूकता को आपने आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति से जोड़ा है। क्या SRHR के मामले में महिलाओं को अधिकार प्राप्त है सारे, जो शैक्षणिक रूप से या आर्थिक रूप से बेहतर हैं, उनको सारे अधिकार प्राप्त हैं रूरल इंडिया में? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। और इवन सरकार की भी जो स्कीम है वो तक उनका एक्सेस वहां तक नहीं हो पा रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो ज्यादातर दलित कम्युनिटी के साथ है, तो दलित में भी जो महादलित वाली स्थिति में है कि जब हम देखते हैं कि बहुत सारी स्कीम्स है सरकार की, उन्हें सैनिटरी पैड देने की, उन्हें प्रेगनेंसी के टाइम पे न्यूट्रिशियस फूड देने की, तो वो तक वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं। उसकी दो वजहें हैं। एक तो ये कि महिलाओं को खुद भी बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं होती कि सरकार उनके लिए क्या स्कीम ला रही है, और दूसरा ये कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, जो लोअर कास्ट की विमेन है, वहाँ तक जो भी आंगनबाड़ी या हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर हैं वो वहाँ जाना भी नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं जितनी भी सर्विसेज गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं वो उन तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाती हैं। और इसके लिए सिर्फ शैक्षणिक नहीं, अगर हम यूपी के बेल्ट की बात करें तो यहाँ पे कास्ट एक बड़ा फैक्टर, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो बेशक रूरल विमेन के लिए एक बड़ा चैलेंज है हेल्थ की सर्विस को एक्सेस करना, लेकिन जब उस रूरल विमेन में भी जब हम लोग लोअर कास्ट की विमेन को देखते हैं तो वहाँ पर उनका जो एक्सेस है और लिमिटेड हो जाता है। इवन हम लोग 4-5 जो है बस्तियां हैं, यहाँ पे मुसहर कास्ट एक होती है। मुसहर कास्ट जो है सबसे लोएस्ट कास्ट मानी जाती है, और वहाँ पर आज भी उन बस्तियों में पिछले 30 सालों से साफ पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर वो गंदे तालाब से पानी पीते हैं। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ पर जो हम लोगों का मौलिक अधिकार की बात होती है कि साफ पीने का पानी और खाना, 2 वक्त का खाना उन्हें नहीं मिल पाता, जो कि सरकार की तरफ से बहुत सारी राशन की योजनाएं। आज के हेल्थनामा में इतना ही। हमें उम्मीद है कि महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति और जागरूक रहने और अधिकार देने की ज़रूरत पर सभी जोर देंगे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।